ہونے کی دلیل جو ہے وہ آگ میں چھلانگ لگا کر دی، اور کسی نبی نے رب کے ایک ہونے کی دلیل بنگوروں میں بول کر دی، اور کسی نبی نے یارو رب کے ایک ہونے کی دلیل جنت سے زمین پر آ کر دی۔ لیکن جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئی، جب تیرے اور میرے آقا کے جس کا میلاد منایا ہے جب اس کی باری آتی ہے تو کافر اکٹھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ایک مانو۔ اب وہ کہتے ہیں جس کو ایک ماننا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم خدا مانتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں، خدا نظر آتا ہے پھر عبادت کرتے ہیں، رب نظر آئے گا پھر مانیں گے۔ تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا دکھاؤ، وہ خدا ہے کہاں؟ اس خدا کو دیکھیں گے پھر بات کریں گے، وہ خدا دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ تو اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یارو کسی نبی نے اٹھنی نکال کے دلیل دی، کسی نبی نے بندورے میں بول کر دلیل دی، کسی نبی نے ہاتھ روشن کر کے دلیل دی۔ لیکن جب تیرے اور میرے آقا کے باری آتی ہے، جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ اس رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا فقد لبثت فیکم من عمری، فرمایا رب کے ایک ہونے کی دلیل میری زندگی ہے۔ مجھے دیکھو پھر دیکھو جس رب نے مجھے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں وہ رب کتنی شانیں والا ہوگا۔ الشفاء کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف رفعت، آپ کو پتہ ہے آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ عالم، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ذکر رب نے ایسے بلند کیا کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ نماز میں رب کا ذکر، نماز میں حضور کا ذکر، اذان میں رب کا ذکر ہے تو اذان میں حضور کا ذکر، اگر صلاتوں میں حضور کا ذکر ہے، عبادتوں میں حضور کا ذکر ہے تو رب کا بھی ذکر ہے۔ جارو اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی او کما قال، فرمایا اے محبوب تیرا ذکر اتنا بلند کیا ہے جہاں میں ذکر کیا جاؤں گا وہاں تو ذکر کیا جائے گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، فرمایا اے محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے، تو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کر رہا ہے، تو میرا ذکر کر رہا ہے گویا کہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ تیرے اور میرے ذکر میں اب فرق کوئی نہیں، تو تیرا ذکر کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا ذکر کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا ذکر کر رہا ہے۔ جو حضور کا ذکر کرے سمجھو وہ رب کا ذکر کر رہا ہے، تو حضور کا نام لے سمجھو وہ رب کا نام لے رہا ہے، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو حضور کا ذکر کرے گا گویا کہ وہ رب کا ذکر کر رہا ہے۔ یارو اللہ نے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر ہوگا، جہاں محبوب کا ذکر ہوگا وہاں رب کا ذکر ہوگا۔ پھر آگے تیسری حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن ذکرنی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ الجنۃ نصیب، فرمایا اے محبوب جو میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے، یعنی رب رب کرے اور محبوب کا ذکر نہ کرے، رب رب کرے مصطفیٰ مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان وہ خدا نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میری یہ گزارش ہے محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم صاحب، پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ اپنا جلوس جو ہے یہاں لے آئیں۔ گزارش یہ ہے اگر مان لیں گے تو بہتر ہے، نہ مانیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی مدینے لے جائے، مجھے بھی لے جائے۔ اور جو خصوصی گزارش ہے جو سامنے کھڑے ہیں نا ایتھے تسی بھج کے پیر واگے ہو، اے بندے نہیں آگے وہ بھی بندے نے تے اے بھی بندے نے، انہاں بندیاں نوں ایکو زیادہ ثواب ہے۔ آ جاؤ واپس بھائی سارے آ جاؤ، نعرے دا جواب دے دیاں واپس آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، مزمل بھائی انہاں نوں واپس لے کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، تسی آپ کھڑے نہ ہو، انہاں نوں کو پیار نال محبت نال کو آ کے
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमें सरकार ने बुलाया है, आप तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह ताला तकरीबन पौने घंटे बाद खत्म पाक होगा, आप तशरीफ रखें। नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। यारो आइए, जो मैं बात कर रहा हूँ उधर आइए। हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं ना, तो हुजूर का जिक्र जो है वो खुदा का जिक्र है। हुजूर का जिक्र है, खुदा का जिक्र है। यारो तवज्जो रखना, मैं जो हदीस अर्ज कर रहा था, हुजूर ने फरमाया फमन ज़करनी फलम यज़कुरका फलैसा लहुल जन्नत नसीब। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, हदीस कुदसी शिफा शरीफ में मौजूद। काजी अय्याद मालकी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया फमन ज़करनी फलम यज़कुरका, फरमाया ऐ महबूब जो मेरा जिक्र करे, फलम यज़कुरका तेरा जिक्र ना करे, फरमाया फलैसा लहुल जन्नत नसीब, फरमाया जन्नत उसका मुकद्दर नहीं है। मतलब क्या कि जन्नत में वो जाएगा जो रब का भी जिक्र करे, रब के यार का जिक्र भी करे, जो रब रब करे, अल्लाह अल्लाह करे और अल्लाह अल्लाह के साथ मुस्तफा मुस्तफा करता नजर आए, जन्नत में वो जाएगा। आपके चेहरों से मुझे समझ लग रहा है कि आप बड़े महसूस हो रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा महसूस करो ना, सुभान अल्लाह ना। यारो जहाँ रब का जिक्र है वहाँ रब के महबूब का जिक्र है, जहाँ हुजूर का जिक्र है वहाँ रब का जिक्र है। जो हुजूर का जिक्र करे वो ऐसे ही है जैसे खुदा का जिक्र कर रहा है। यारो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। सारा कुरान हुजूर का जिक्र। यारो हुजूर की नात हम भी पढ़ते हैं, हुजूर की नात इमाम बुसीरी ने भी पढ़ी, हुजूर की नात आला हजरत ने भी पढ़ी। मैं शेर नहीं पढ़ रहा, नाम ले रहा हूँ। हुजूर की नात इमाम बुसीरी ने भी पढ़ी, हुजूर की नात आला हजरत ने भी पढ़ी, हुजूर की नात पीर मेर अली शाह साहब ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत हसन ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत आमिर बिन अखवा ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत सलमा बिन अखवा ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत शेर खुदा ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत उस्मान गनी ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत फारूक आजम ने भी पढ़ी, हुजूर की नात हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी पढ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। यारे सारे यार, सारे सहाबा, सारे हुजूर के उम्मती जो है वो हुजूर के नात खा है, सारे हुजूर की नात पढ़ते हैं। आला हजरत तो कहते हैं सरवर कहूँ के माले को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का तुझे ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तलाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा जोश में नारा मारो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सारे नात खां हुजूर के हैं। कोई नसर में हुजूर की नात पढ़ता है, कोई नज़म में पढ़ता है, कोई खूबसूरत आवाज में पढ़ता है, कोई लेख कर पढ़ता है, कोई बोल कर पढ़ता है। यारो जो हुजूर की नात पढ़ता है हुजूर खाली नहीं मोड़ते, हुजूर अता फरमाते हैं। इमाम बुसीरी ने नात लिखी, कसीदा बूटा लिखा, रात को सोए, जिस्म में बीमारी थी और चल नहीं सकते थे। जब सुबह हुई तो मस्जिद को जा रहे हैं, लोगों ने कहा हमने तो समझा था सुबह बुसीरी का ऐलान होगा कि वो फौत हो गए हैं, जनाजा पढ़ना है, कब्र का एहतमाम करना है, तो आप तो मस्जिद को जा रहे हैं, ना कोई बीमारी है ना कोई परेशानी है। तो इमाम बुसीरी ने कहा बात असल में ये है कि जब रात हुई मैंने हुजूर की लिखी नात लिखी है, पढ़ी नहीं, हुजूर की नात लिखी है। यारो हुजूर दिलों को जानते हैं, ये एक अलग मौजू है जो मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर की नात लिखी इमाम बुसीरी ने, हुजूर ख्वाब में आए, हाथ फेरा, बीमारी भी दूर हुई, चादर जो हुजूर अलैहिस्सलाम या अय्युहल मुज़्ज़िल
मुज़म्मिल की चादर जो है हुजूर ने वो भी इमाम वसीरी को अता फरमाई। मस्जिद को जा रहे साहब हुजूरी बुजुर्ग मिले, फरमाया ऐ शरफुद्दीन, आपका नाम शरफुद्दीन लक़ब वसीरी है। कहा ऐ शरफुद्दीन जो रात को हुजूर की नात थी वो सुना तो सही। इमाम वसीरी ने कहा अभी तो मैंने लिखी है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, अभी मैंने उसको जो है वो कागज पे नकल किया है, अभी कलम बंद किया है, अभी मैंने किसी को सुनाई नहीं। और तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हुजूर की नात लिखी है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं हाँ ठीक बात है, लेकिन जो रात को हुजूर को सुना रहे थे तो फिर हमें भी तो सुना दे यारा। जो हुजूर की नात पढ़ता है हुजूर करम भी फरमा देते हैं, हुजूर आ भी जाते हैं, हुजूर बीमारियां भी दूर फरमा देते हैं, क्योंकि हुजूर से कोई दूर नहीं है। अल्लाह ने आपको हाजिर भी बनाया है, अल्लाह ने आपको हाजिर भी बनाया है, आपको नाज़िर भी बनाया है। शाहिदा व मुबश्शिरा, शाहिद की शान भी अल्लाह ने आपको दी है, मुबश्शिर की शान भी अल्लाह ने आपको दी है। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की नात है, सारे हुजूर की नात पढ़ते हैं, सारे हुजूर की तारीफ करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। रब पे दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, हुक्म हमें भी है। लेकिन सवाल ये है तेरा और मेरा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तेरा और मेरा दुरूद है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। वो रब है, वो खालिक है, वो हई है, वो कय्यूम है। हई होना भी उसकी शान है, कय्यूम होना भी उसकी शान है। हम भी दुरूद पढ़ते हैं, रब भी अपनी शान के लिए दुरूद भेजता है। हमारा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हमारा दुरूद है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। रब का दुरूद क्या है? दुरूद तो रब भी भेजता है। हमारा दुरूद तो ये हुआ हम कहते हैं अल्लाह, हम कहते हैं मौला। वो खालिक है, वो राज़िक है, वो मालिक है, वो करीम है, वो गफूर है, वो गफ्फार है, वो जब्बार है, वो सत्तार है। वो किसको कहे अल्लाहुम्मा, वो किसको कहे मौला या। हम मौला या कहते हैं, हम अल्लाहुम्मा कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि रब का दुरूद क्या है। दुरूद हम भी पढ़ते हैं, दुरूद रब भी भेजता है। फिर दुरूद रब का क्या है? तो इमाम बुखारी कहते हैं रब का दुरूद ये है सलातुल्लाह सलाहुहु अलैहि इंदल मलाइका, कहते हैं। और रब का दुरूद ये है रब हर वक्त अपने महबूब की फरिश्तों के हाथ तारीफें करता है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। और रब हर वक्त अपने यार की तारीफें करता है। पंजाबी के शायर ने कहा था सोने दी सिर्फ तो सना कर दे भे हाँ, और सोने दी सिर्फ तो सना कर दे भे हाँ, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे भे हाँ। यारो हमने महफिल को सजाया, हमने जुलूस को निकाला, लोगों को बुलाया, लंगर पकाया, लोगों को दावत दी, इकट्ठा किया, घर घर गए कि आना यार, आना यार। क्यों? कि यहाँ हुजूर की नात पढ़ी जाएगी। क्या हुजूर की नात पढ़ी जाएगी? तो हुजूर की नात पढ़ना कोई नया काम है? असल से लेकर अब तक जो है वो हुजूर की नात हो रही है। कोई पढ़े ना पढ़े रब तो अपने महबूब की तारीफ कर रहा है। फिर कुरान देखिए, कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान में जो चीजें हैं वो रब की तारीफें करती है। हर शय रब का नाम लेती है, हर शय अल्लाह की तारीफ करती है। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ की और अल्लाह ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद कहते हैं जिसकी बार बार हर वक्त हर लाजा हर लम्हा हर घड़ी जिक्र किया जाए तो मोहम्मद उसको कहते हैं। फिर कुरान तो कहता है हर चीज हर वक्त रब की तारीफ कर रही है। फिर सवाल उठता है कि ये नाम तो रब को होना चाहिए कि हर शय तो रब की तारीफ करती है, और रब ने ये नाम अपने महबूब को लिखा। अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, हुजूर का नाम पहले भी था। अभी आशीष पैदा नहीं हुए थे, हुजूर का नाम पहले भी था। अभी मीलाइल पैदा नहीं हुए थे, हुजूर का नाम पहले था। हर शय बाद में है, हुजूर का नाम पहले है। और हुजूर की तारीफ सबसे पहले है। वो खालिक है, खालिक होने से अव्वल है, और हुजूर मखलूक होने के एतबार से अव्वल है, वो भी अव्वल है, ये भी अव्वल है। फर्क ये है वो खालिक है, ये मखलूक है। हर शय से पहले हुजूर का नूर है। जानो हर शय रब की तारीफ करती है। और रब ने नाम अपने महबूब का रखा तो
सवाल उठता है जब हर शय हुजूर की तारीफ करती है, जब हर शय हुजूर का, जब हर शय रब की तारीफ करती है, जब हर शय रब का नाम लेती है, फिर नाम मोहम्मद रब का होना चाहिए था। तो आशिक ने जवाब दिया, कहा और जिसकी हर शय तारीफ करे वो उसको रब कहते हैं, और जिसकी रब तारीफ करे वो उसको मोहम्मद कहते हैं। सदा सलामत अल्लाह वस्ते रखे। क्या बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आज कर रहा था, बात तो मैंने और करनी थी, बात नाक की तरफ आ गई है। अमीन साहब ने मुझे छेड़ा है, कसूर इनका है, मेरा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। रब भी हुजूर की नात पढ़े, रब भी दुरूद भेजे अपनी शान के लिए महबूब पर। तो तारीफ है ना हुजूर की, तो अज़ल से लेकर अबद तक हुजूर की तारीफ है। युसल्लून फेल मुदारे का सीगा तमाम इस्तेमाल इसमें पाया जाता है, यानी जब से रब की ज़ात है हुजूर पे दुरूद भी है। जब से रब की ज़ात है हुजूर पे दुरूद भी है। ना रब की ज़ात खत्म हो सके ना हुजूर का दुरूद खत्म हो सके। रब की ज़ात अज़ली है, रब की ज़ात अबदी है, अल्लाह की शान हई है, अल्लाह की शान क़य्यूम है। यारो हमेशा रब है, हमेशा रब की ज़ात रहेगी। अगर हमेशा रब की ज़ात रहेगी फिर हुजूर का दुरूद भी हमेशा रहेगा। यारो नात हुजूर की है, हमने भी नात हुजूर की पढ़ी, अमीन साहब ने भी नात हुजूर की पढ़ी, नमान साहब ने भी नात हुजूर की पढ़ी, मुनीर साहब ने भी नात हुजूर की पढ़ी, मुझसे कबल कितने नात खानों ने नात हुजूर की पढ़ी। ये सारी नातें अपनी जगह, लेकिन हुजूर की नात सबसे बड़ी कुरान है। तो इधर उधर तवज्जो ना हो, बड़ी मेहरबानी मेरे लिए तवज्जो रखो। सुभान अल्लाह। यार उन्होंने आना है ते आ जाएंगे, महबूब की महफिल नूं महबूब सजांदे ने, आंदे हो ने सरकार बुलांदे ने, ते सारे तुसीं इधर मेरे लिए तवज्जो दिओ और मुफ्ती साहब की ज़ियारत करो। माशाअल्लाह ये एडी मेहनत करके तकरीर पे करदे ने, तुसीं सजे खबे वेख के सारी तकरीर ज़ाया पे करदे हो। जो आएगा वो आएगा, मरहबा, लेकिन जो आए बैठे हैं वो तो बैठे ना। तो यारों मैं आज कर रहा था, अब बिल्कुल इधर उधर तवज्जो नहीं होनी चाहिए, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यारों मैं आज कर रहा था, सबसे बड़ी नात कुरान है, कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, तो फिर इससे बड़ी हुजूर की नात भी कोई नहीं। सारा कुरान हुजूर की नात बयान करता है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ के देखें, नात हुजूर की है। पहले पारे में भी नात हुजूर की है। जब पहला पारा आता है तो कुरान कहता है रब्बना वबअस फीहिम रसूला। जब दूसरा पारा आता है तो कुरान कहता है लक़द नरा तक़ल्लुबा वजहिक फिस्समा। जब तीसरा पारा आता है तो कुरान कहता है तिलकर रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम दरजात। जब चौथा पारा आता है तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। जब पांचवा पारा आता है तो कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फर लहुमुर रसूल। जब छठा पारा आता है तो कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जब सातवां पारा आता है तो कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब आठवां पारा आता है तो कुरान कहता है वलिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। जब नौवां पारा आता है तो कुरान कहता है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। जब दसवां पारा आता है तो कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। जब दसवां पारा आता है तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। जब 11वां पारा आता है तो कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जब 12वां पारा आता है तो कुरान कहता है व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। जब 13वां पारा आता है तो कुरान कहता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। जब 14वां पारा आता है तो कुरान कहता है वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाई। जब 15वां पारा आता है तो कुरान कहता
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जब सूरह मुबारक आता है तो कुरान कहता है तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, जब सदर मुबारक आता है तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जब 18 मुबारक आता है तो कुरान कहता है ला तजअलू दुआ रसूल, जब 19 मुबारक आता है तो यारो 19वें पारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरा व नज़ीरा, जब 20 मुबारक आता है तो कुरान कहता है व इन्नहु लहुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन, जब 21 मुबारक आता है तो कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जब 22 मुबारक आता है तो कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, जब 23 मुबारक आता है तो कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, जब 24 मुबारक आता है तो कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जब 25 मुबारक आता है तो कुरान कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा, जब 26 मुबारक आता है तो कुरान कहता है लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, यारो जब 27 मुबारक आता है तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कहीं कुरान कहता है वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, जब 26 मुबारक आता है, जब 28 मुबारक आता है तो कुरान कहता है वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, जब 29 मुबारक आता है तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, जब 30 मुबारक आता है तो कुरान कहता है वमा हुआ अलल ग़ैबि बिदनीन, कहीं कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, कहीं कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक, कहीं कुरान कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, कहीं कुरान कहता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, और यारो कहीं कुरान कहता है इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। के नारा मारना ही पैना है, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शफीक भाई तुम ही हाथ चुक लाए, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी सभी हजरात, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद, ओताहा की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, तुसी यारो थक गए सारे लगता है, मक्की की आमद, मंजा की आमद, आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किबला मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब तशरीफ रखिए भाई। रसूल मिलाद मुस्तफा जिंदाबाद, यारो सारा कुरान हुजूर की नात है, तो जो है सुभान अल्लाह। चलिए आ जाए मिलाद, आम मिलाद में क्या करते हैं, हुजूर की नात ही पढ़ते हैं, जब नात कुरान पढ़ रहा है हाय 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 वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। सारा कुरान हुजूर की नात है यारो। अब हम पे एतराज होता है, मैं 2-3 बातें अर्ज करके सलाम पढ़ते हैं। एतराज है तुमने झंडे लगाए, झंडे कहाँ लिखे हैं? झंडे जब हुजूर पैदा हुए तो कोई झंडा मक्के में नहीं लगा, तुम क्यों लगाते हो? मैंने कहा हम इसलिए तो लगाते हैं कि मक्के में कोई झंडा नहीं लगा। मेरी बात क्या बात, और तुसी झंडे लाते ताई तो लाने हैं, मक्के कोई नहीं लगा। जब हुजूर पैदा हुए तो झंडा तो कोई लगा, मक्के कोई झंडा नहीं। और मैं आख्या सी ताई तो झंडा लाने और मक्के कोई झंडा नहीं। आख्या की मतलब? मैं क्या मतलब है कि मक्के कोई झंडा नहीं। कहते जो
झंडा नहीं लगा सी ताई दा नाम है कि मक्का नहीं लगा। اس لیے کہ حضور کے باب اجداد کے علاوہ چند شخصیات کے بارے اس کے علاوہ جو ہے کوئی مسلمان ہی نہیں، تو حضور کی آمد کا جھنڈا وہ کافر نے توڑا لگانا ہے۔ حضور کے آمد کا جھنڈا کافر نہیں لگائے گا اور حضور کا غلام لگائے گا، حضور کے